بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ۔ تاریخ اسلام میں وہ رات بھی عجب شان رکھتی ہے جس کو شب معراج کہتے ہیں۔ یہی وہ شب ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے وہ مرتبہ حاصل ہوا جس کی مثال انبیاء و رسل میں نہیں ملتی۔ اس شب مقدسہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے مقام کعبہ قوسین تک سیر کرائی گئی۔ سبحان اللہ۔ تمام عجائبات ارضی و سماوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ صحیح احادیث میں معراج شریف کے واقعے کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوابگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سواری لے کر حاضر ہوئے جس کو براق کہتے ہیں، اور عرض کیا خدا قدوس نے آج آپ کو وہ شرف بخشا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی و رسول کو نہیں بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر پہلے بیت المقدس پہنچے، وہاں سے مسجد اقصی میں نماز ادا کی اور تمام انبیاء و رسول کی جو پہلے سے وہاں تشریف فرما تھے اقامت فرمائی، اور وہاں سے معراج پر تشریف لے گئے جس کا ذکر کلم و زبان سے محال ہے، بلکہ عقل سے بھی اس کا تصور عاجز ہے۔ اس کو تو خدا اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اسماء پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دریا دیکھا جو آسمان سے بہتا ہوا زمین کے کناروں کو چھو رہا تھا، اور ستارے کشتی کی مثل اس پر تیر رہے تھے۔ اتنے میں فرمان الہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک گئے تو پہلا آسمان گھوم گیا۔ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منور چوٹی نظر آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چوٹی پر پاؤں رکھ کر پہلے آسمان کے اس حصے میں پہنچے جہاں نورانی بادلوں میں ایک دروازہ نظر آتا تھا جس کا نام تھا باب الخفا، اور وہ دروازہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا تھا۔ اس پر ایک دربان فرشتہ کھڑا تھا جس کا نام اسماعیل تھا۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا۔ اس فرشتے نے خوش ہو کر کہا مرحبا ہو آنے والے پر جو بہت ہی اچھا ہے۔ اتنا کہہ کر فرشتے نے دروازہ کھول دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ انتہا کا درجہ صاف دیکھا آسمان جیسے آئینہ ہو۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی جو صفے باندھے ہوئے حالت قیام میں کھڑے تھے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی جو صفے باندھے ہوئے حالت قیام میں کھڑے تھے اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ بہت تعریف کے لائق سب سے زیادہ پاک ہے رب ہمارا اور پروردگار فرشتوں کا اور روحوں کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ان فرشتوں کی یہی عبادت ہے اور قیامت تک یہی عبادت کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اپنے کرم سے اس عبادت کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نماز میں قیام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم ہے کہ اس کو بھی اچھی طرح سے بجا لایا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ان فرشتوں کی تعداد کس قدر ہوگی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
मखलूकात खुदावंदी में से कोई भी इसकी तादाद नहीं जानता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आगे बढ़े तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वो एक तख्त पर बैठे थे और नूरी लिबास पहने हुए थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम सब इंसानों के बाप हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास चलें और इनको सलाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास गए और सलाम किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खंदा पेशानी से इसका जवाब दिया। इसी असना में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दरवाजे देखे, एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ था। दाएं तरफ के दरवाजे से खुशबू आ रही थी और बाएं तरफ के दरवाजे से बदबू। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाएं तरफ दरवाजे को देखते थे तो हंसते थे और जब बाएं तरफ देखते थे तो रोते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये दोनों दरवाजे कैसे हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, दाएं तरफ दहशती दरवाजा है, नेक रूहें इसी से दहशत में जाती हैं, और बाएं तरफ दोज़खी दरवाजा है, बदरूहें इसी दरवाजे से जहन्नुम में जाती हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नेक रूहों को देखकर खुश होते हैं और बदरूहों को देखकर गमगीन हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे बढ़े तो उनका गुजर ऐसी जमातों से हुआ जिनको अल्लाह की तरफ से अजाब दिया जा रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने वो सब देखा और जिब्रील अमीन से उनके बारे में दरियाफ्त करते हुए आगे बढ़े। आगे जाकर उनको एक अजीम शान फरिश्ता नजर आया। वो फरिश्ता जमीन पर भी था और आसमान पर भी। इसका हाल आपको अगली वीडियो सिदरतुल मुंतहा में बताया जाएगा। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आगे बढ़े तो एक फरिश्ता देखा जिसका ऊपर का आधा हिस्सा आग से बना हुआ था और निचला आधा हिस्सा बर्फ से। मगर ये अजीब बात थी कि ना तो आग बर्फ को पिघलाती थी और न बर्फ आग को बुझाती थी। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, ये फरिश्ता कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को अपनी कमाल कुदरत से पैदा किया है, इसको बादलों पर मुवक्किल किया है ताकि जिस जगह अल्लाह का इरादा हो बादल वहां ले जाए। इसका नाम राद है। जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो इसी की ही आवाज आती है। यहाँ से चले तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक दरिया पर पहुंचे। ये बड़ा ही अजीब और गरीब दरिया था। इसके अजाबात गिनती में नहीं आ सकते। इसका पानी दूर से ज्यादा सफेद और उसकी मौजें पहाड़ से ज्यादा ऊंची थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, इस दरिया को बहरे हिमान कहते हैं। जब क़यामत के दिन इंसानों का हशर का वक्त आएगा तो इस दरिया से जमीन पर बारिश होगी और इसका पानी अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों के ढांचों को दोबारा जिंदा करेगा। सुभान अल्लाह। अरूज करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील के साथ दूसरे आसमान पर पहुंचे तो हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ देखा। एक रिवायत में है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमुल्लाह वजह से रवादात मेराज बयान करते हुए बताया कि अल्लाह ताला ने इस आसमान को जरसुख से पैदा किया है। यहाँ एक जगह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक दरवाजा खटकाया तो दरबार ने पूछा, कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या अन हजरत माबूस हो चुके हैं? दरबार ने पूछा। हाँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुख्तसरन जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दरबार ने कहा और दरवाजा खोल दिया।
इस दरवाजे के खुलते ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने एक और दरवाजा देखा जिसमें नूर का कफल लगा हुआ था। इसका दरबान एक फरिश्ता था जिसका नाम इसराफील था। इसके ताबे 2 लाख फरिश्ते थे जिनके ताबे हर एक के फिर 2 लाख फरिश्ते। इनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो तमाम ने सलाम का निहायत ताज़ीम से जवाब दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो फरिश्तों की एक जमात देखी। सब फरिश्ते सफ़े बांधे रकू की हालत में अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। ये फरिश्ते जब से पैदा हुए थे उन्होंने अपना सर कभी ऊपर नहीं उठाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से पूछा, क्या दूसरे आसमान के फरिश्तों की यही इबादत है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन फरिश्तों का यही इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से तलब करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी अल्लाह ताला इस इबादत का सवाब अता फरमाए। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने नमाज में रकू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज फरमाया। यहाँ से अरूज किया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जवान देखे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुलाकात करें। चुनाचा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर कहा, अस्सलामु अलैकुम। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफिहा किया। यहाँ से आगे चले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फरिश्ता दिखाई दिया जो ताज़ीम से सर झुकाए खड़ा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहा था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से उस फरिश्ते का हाल दरियाफ़त फरमाया तो उन्होंने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने इंसानों में रोज़ी तकसीम करने का मुअक्किल बनाया है ताकि अल्लाह ताला के दस्तरखान से हर शख्स को रोज़ाना रोज़ी मिलती रहे। इस फरिश्ते का नाम कायम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ से आगे बढ़े। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर पहुंचे तो देखा हर तरफ सफेद मोती सी कंदलें झिलमिला रही थी। ये कंदलें नूर से रोशन थी। इस आसमान का नाम ज़लवून था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बहुत से फरिश्ते देखे जो सजदे में पड़े हुए थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सलाम कहा तो फरिश्तों ने सर उठाया और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम का जवाब देकर फिर सजदे में चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी ये इबादत अता फरमाए। लिहाजा अल्लाह ताला ने नबी करीम की दुआ कबूल फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर हर रकत में 2 सजदे फर्ज कर दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इन फरिश्तों में थे और इबादत कर रहे थे। हुजूर ने इनको सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। बड़ी गर्म जोशी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफिया किया और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह से आगे गए तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आज की रात अल्लाह ताला की रहमत और शफाअत के दरवाजे खुले हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे ताला के महबूब हैं। अल्लाह ताला से कहें कि वो क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श दें। सुभान अल्लाह। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से अरूज किया तो एक फरिश्ते के पास पहुंचे जो कुर्सी पर बैठा था और उसके पर बड़े चमकीले थे और इस फरिश्ते की चौड़ाई इस कदर थी कि अगर वो एक पर को फैलाता तो मशरिक से मगरिब तक घेर लेता।
इस फरिश्ते के इर्द गिर्द बहुत से फरिश्ते जमा थे जो बड़े ही जिस्म वाले थे। इनके हाथ में आग थी जिनसे वो बहुत से इंसानों को अजाब दे रहे थे। जब वो गजर मारते तो इनका जिस्म रेजा रेजा हो जाता और जल जाता और फौरन ही वो अपनी वापस असली हालत में आ जाता और फरिश्ते इनको गजर मार मार कर फिर रेजा रेजा कर देते। कुर्सी पर बैठा हुआ हर फरिश्ता अजाब देने वाले फरिश्ते का सरदार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम पूछा। इस फरिश्ते का क्या नाम है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस फरिश्ते का नाम इसराहील है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, ये लोग जिनको अजाब दिया जा रहा है वो लोग हैं जो दुनिया में बड़े मगरूर और मुतकब्बिर थे। गुरूर और तकब्बुर से नाउज़ बिल्लाह खुदा बने बैठे थे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरिया पर पहुंचे जो बहुत बड़ा था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, इस दरिया को बहरुल नाम कहते हैं। इस दरिया के पानी की मिकदार तमाम दुनिया के बराबर है, मशरिक से मगरिब तक और ज़मीन से आसमान तक। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अभी इस वीडियो में आपको पहले 3 आसमान का जिक्र बताया गया है। इंशाअल्लाह जल्द ही आपको बाकी 4 आसमानों के बारे में भी बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।